Hello everyone and welcome to CladPoint. So now we will see that what has happened in the courts in April 2024. So this is our champions badge firstly, and please call us or connect with us to know how your preparation for your CLAD PG can be elevated a notch and how you can ensure your success in the exam coming up. So first case is for State of Kerala versus Narendra Kumar. Now this is a Kerala High Court case. The bench was of Justice A.K. Jayashankaran Nambiar and Justice Kumar V.M. Now what were the facts of the case? So basically, there was a person who was convicted already under section 302, that is for murder, IPC, and he had committed triple murders. ठीक है, ये चीज़ फिक्स हो गई थी कि हाँ ठीक है, ऐसे ट्रिपल मर्डर्स किए हैं ऑफ हिज पेरेंट्स एंड हिज एम्प्लॉयर, एंड इसके लिए उसको 302 की सज़ा मिल गई थी. अब बात ये आती है कि जो 302 है इसमें वन ऑफ द पनिशमेंट्स इज डेथ पेनल्टी. अब डेथ पेनल्टी के लिए ये बच्चन सिंह के केस में कहा गया है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में अगर कोई केस आता है सिर्फ तो ही वो आपके डेथ पेनल्टी के लिए लिया जाता है, वरना वो डेथ पेनल्टी के लिए क्वालिफाई नहीं करता. तो इस केस में भी यही हुआ कि डेथ पेनल्टी ना देके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया. नाउ कोर्ट में क्या बात हुई थी? It is significant that there is no direct evidence to prove the incident. The prosecution case is built on circumstantial evidence. सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पूरा केस था वो circumstantial evidences पे प्रूव हुआ था. So वो प्रूव हो गया था, that is true, but there was no direct evidence for it. In our jurisprudence, the death sentence is reserved only for those cases that qualify the rarest of the rare. While the facts and circumstances proved against the appellant before us clearly point to his involvement in gruesome triple murder, we would not go as far as categorizing it to the rarest of the rare case so as to impose a death penalty on him. This is especially so because in this is case where we have sustained the conviction of the accused for various offences. बहुत सारे और offences के लिए भी उन पे बहुत सारी और धाराएं लगी थी, 397, 457 एक्सेट्रा. तो वो सब कुछ सोली सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे हुआ है. तो कोर्ट का ये कहना है कि ठीक है, सर्कमस्टांशियली हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात प्रूफ कर ली कि उसने जो है मर्डर किया, लेकिन फिर भी एक केस को सर्कमस्टांशियल बेसिस के एविडेंस पे डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते. We confirm the conviction and sentence imposed on the appellant by the trial court in respect of the offences under sections 397, 457, 380, 461 IPC. As for the offence under 302, while we uphold the conviction uphold किया, ये नहीं कहा कि इसे murder नहीं किया है. For the appellant, we deem it appropriate to modify the sentence to one of the life imprisonment with further condition that he shall undergo mandatory imprisonment without remission for a period of 20 years. 20 years से कम की सज़ा नहीं हो सकती है अगर रेमिशन होता भी है तो, और ये इम्प्रिजनमेंट उसको 20 years का करना होगा, लेकिन डेथ पेनल्टी के लिए क्वालिफाई नहीं करता. देन कम्स अन्नपूर्णा Upin versus Malsidappa. So if my pronunciation is wrong, I am very sorry for that. Now it was a division bench, Justice Vikram Nath and Justice Satish Chandra Sharma. अब इसमें क्या कहा गया था? इसमें बहुत बेसिक सी बात बोली गई है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन अगर है कोई, तो आप उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं ला सकते हैं. ठीक है, तो कोर्ट ने ये कहा कि एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन को आप कंज्यूमर कोर्ट 1986 के एक्ट के अंदर हम उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो 1986 का एक्ट है इसके अंदर होती है समरी प्रोसीडिंग्स. ठीक है ना, टाइप ऑफ प्रोसीडिंग्स होती है. समरी प्रोसीडिंग जो है वो 1986 के एक्ट में होती है, विच इज़ दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. But the appropriate remedy for recovery of the said amount, if any, admissible to the complainant under respondent number 1 would be civil court. तो कोर्ट ने कहा कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है कोई, तो आप कंज्यूमर बन के नहीं आ सकते, तब आपको सिविल कोर्ट जाना होगा. द लॉ इज वेल सेटल्ड दैट लीगल एयर्स ऑफ, ये दूसरा पॉइंट है इसमें जो लॉ पे कहा गया है, that legal heirs of a deceased partner do not become liable for any liability of the firm upon the death of the partner. तो अगर एक फर्म है उसमें दो पार्टनर्स हैं, तो इसमें ये नहीं होता है कि अगर एक की डेथ हो गई तो इसका जो लीगल एयर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसका पार्टनर बन गया उस पार्टनरशिप फर्म का.
ये नहीं होता है, एंड इट्स अ वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल इन लॉ कि अगर एक पार्टनरशिप है, दो लोग पार्टनरशिप में हैं, एक इंसान मर जाता है उसमें से, तो उसका जो भी लीगल एयर है वो ऑटोमेटिकली उस फर्म का पार्टनर नहीं बनता. नाउ चंदन वर्सेस स्टेट. अगेन डिवीजन बेंच, जस्टिस दुलिया एंड जस्टिस वराले. नाउ फैक्ट्स क्या थे इसके कि द एपेलेंट बिफोर द कोर्ट वाज कन्विक्टेड अंडर 302, एंड जो कन्विक्शन और सेंटेंस था वो हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया था. ऑब्वियसली ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हाँ मर्डर किया है, तो अपील किया उन्होंने. हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं आपने मर्डर किया है और कन्विक्शन हम अपील कर रहा है, अपहोल्ड कर रहा है. एज पर द प्रोसिक्यूशन, it is a case of daylight murder with reliable eye witnesses. ये circumstantial evidence का केस नहीं था, यहाँ पे आई विटनेसेस मौजूद थे. अब इसमें क्या कहा जाता है आई विटनेसेस के लिए. कोर्ट ने कहा कि इन शिवाजी जेनु मोहित versus state of Maharashtra, sorry for the wrong pronunciation, it was held that it is a well settled principle in criminal jurisprudence that when ocular testimony inspires confidence of the court, the prosecution is not required to establish motive. हम लोग को हमेशा क्या लगता है कि हर केस में स्पेशली एक मर्डर केस में या क्रिमिनल केस में मोटिव होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ ट्रू, मोटिव बहुत ज़रूरी है. पर इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर जो आपकी ऑक्यूलर टेस्टिमनी है वो ऐसी है जहाँ पे मतलब डायरेक्ट एविडेंस है, आपके पास टेस्टिमनी है, आई विटनेसेस हैं, वो ऐसी है कि यू हैव द कॉन्फिडेंस इन इट. आपको पता है कि हाँ ये टेस्टिमनी सच है, ये सही है, ये इंसान अपने होश आवास में तब था जब उसने क्राइम सीन देखा, अब है जब वो टेस्टिमनी दे रहा है, और इसके पीछे इस इंसान के अपने कोई मोटिव नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ट्रस्ट बिल्ड होता है टेस्टिमनी पे, तो मोटिव स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं रह जाती है. देन यू डोंट हैव टू स्टैब्लिश द मोटिव. अगर ए ने देखा कि बी ने चाकू मारा है डी को, सो दिस इज इनफ. और ए जो है वो सही से आके अगर अपना बयान दे रहा है और उसकी टेस्टिमनी पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है कि बी का मोटिव क्या था डी को मारने को, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एस्टैब्लिश पर से. Mere absence of motive will not impinge on the testimony of a reliable eyewitness. Motive is an important factor for consideration in a case of circumstantial evidence. अगर circumstantial evidences के बेस पे कहा गया है कि हाँ ए उस घर में था, सिर्फ ए ही था, बी वहां गया और बी मर गया, और ना उसके बाद कोई आया ना उसके बाद कोई गया, ठीक है. अब ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है. यहाँ पे होगा कि अच्छा ठीक है, बट मोटिव क्या था कि ए बी को मारे, ठीक है. तो यहाँ जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात होती है तो मोटिव इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर सर्कमस्टेंशियल बेस्ड नहीं है, अगर ओरल टेस्टिमनी या ऑक्यूलर टेस्टिमनी है, आई विटनेसेस हैं और उन पे इंस्पायर हो रहा है कोर्ट का कॉन्फिडेंस, तो मोटिव पे जाना जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है कि आप मोटिव प्रूव करें. बट व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट आई विटनेस, मोटिव इज नॉट सिग्निफिकेंट. Now comes a case of Domino's IP Holder LLC versus MS Domino Pizza. Now this was Delhi High Court का केस. क्या हुआ था? Domino's we all know एक पिज़्ज़ा की ब्रांड है. वैसे ही नाम के 8 और लोगों ने अपने अपने ब्रांड्स शुरू कर दिए थे. सो उनका डोमिनो पिज़्ज़ा, डोमिनोज में जेड लगा दिया, एंड यू नो इस तरह के अलग अलग बहुत ही सिमिलर नाम उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिए थे, ट्रेड नेम्स, जो कि बहुत आइडेंटिकल थे और डिसेप्टिवली सिमिलर थे. यानी कि डिसीव हो जाए इंसान कि ये डोमिनोज वही वाला है जो हम लोग खाते आए हैं इतने टाइम से, या ये कुछ नया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले हैं वो प्लेंटिफ हैं और 8 डिफेंडेंट्स हैं, ठीक है. तो डोमिनोज पिज़्ज़ा ने कहा कि ये फ्रॉड कर रहे हैं जनरल पब्लिक के साथ और एक फॉल्स एसोसिएशन बना रहे हैं हमारे साथ. क्या होगा, अब आप डोमिनोज पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, और आप जा रहे हैं और आपको आउटलेट दिखा और उस पर लिखा है डोमिनो पिज़्ज़ा. ये हो सकता है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि अच्छा ये डोमिनोज नहीं डोमिनो है सिर्फ, या आपको ये लगा कि अच्छा हो सकता है इन लोगों ने अपना ब्रांड नेम चेंज कर लिया है, ठीक है, क्योंकि वो इतना सिमिलर है डोमिनो पिज़्ज़ा के कि आप डिसीव हो जाएंगे, आपको धोखा मिलेगा उससे. तो यही जो है वो इन लोग का केस था. और ऑल्सो ऑब्वियसली फाइनेंशियल लॉसेस हुए. हमें डोमिनोज से ऑर्डर करना था, हमने डोमिनो से ऑर्डर कर दिया, तो जो पैसा डोमिनोज के पास जाना था वो डोमिनो के पास चला गया. यू गेटिंग? सी ये है आइडेंटिकल नेम्स: डोमिनो, डोमिनोज, डोमिनन, डोमिनॉक्स, डोमिसन, जेड वाला डोमिनोज एंड डोमेन. ना दीज आर सो सिमिलर कि एक बार में इंसान देखेगा और बहुत ध्यान से नहीं अगर पढ़े तो उसे कंफ्यूजन हो जाएगा.
Plaintiffs are aggrieved by defendant number 1 to eight's unauthorized adoption of identical or deceptively similar trade names and marks being Domino's और जितने भी हैं उन सबको हम लोग impugned marks कह रहे हैं. The impugned marks are being used to operate imitator brand outlets on online delivery platforms like Zomato and Swiggy. तो Zomato और Swiggy पे भी थे ये. Defendants take unfair advantage of the search result returned upon typing the first string of the letter, that is DOM. अगर DOM या DOMI लिखेंगे तो आ जाता है, उसके बाद हमें से कोई नहीं पूरा टाइप करता है. We just click जो उसके नीचे आ रहा है. तो क्या होगा कि ये जितने भी false वाले हैं ये भी आ जाएंगे and we'll order from it. All of which leads to a suggestion of the said defendant outlet enlisted on Zomato and Swiggy. The malified intent behind defendant's adoption of such deceptively similar marks becomes is evident from the nature of the goods and services. अच्छा ये भी नहीं है कि डोमिनो की बेडशीट्स मिल रही हैं कि अच्छा कंफ्यूजन ही नहीं हुआ कि अच्छा नहीं नहीं हमें बेडशीट नहीं चाहिए हमें तो पिज़्ज़ा चाहिए. आप लोग सब पिज़्ज़ा ही सेल कर रहे हैं. योर आउटलेट्स आर सेलिंग द सेम थिंग्स. ठीक है, आपका जो नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो सेम है. तो ऐसा भी नहीं कि अच्छा ओ ये लैपटॉप है डोमिनो नाम का है एंड इट्स अ लैपटॉप कंपनी. ऐसा भी नहीं है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कहीं पे. तो इसका मतलब है कि वो लोग चाहते हैं कि जो लोग डोमिनोज जा रहे हैं वो हमारे पास आ जाए. In order to avoid detection, they are operating their physical outlets are under different trade names, जैसे पिज़्ज़ा एक्सप्रेस, ओपन स्काई कैफे. तो जो इनके फिजिकल प्रेजेंस है, जो आउटलेट्स हैं, वो अलग नाम के हैं. पिज़्ज़ा एक्सप्रेस के नाम का आउटलेट है, लेकिन जोमेटो और स्विगी पे क्या नाम दिया हुआ है? डोमिनो. ठीक है. Furthermore, defendant number 1 and 8 are either operated by same proprietors or share FSSAI number, identical FSSAI number, indicating that a unified business operation. तो ये सब आठों के आठ एक unified operation है. Additionally, some of these entities are registered under multi-brand kitchen, feature offered by Zomato, a platform features which permits various brand names to function from a single cloud kitchen location. तो location एक ही है सबकी, नाम अलग अलग आ रहे हैं. तो ये basically पूरा ग्रुप बनाया गया है कि डोमिनोज के नाम का गुडविल का हम लोग फायदा उठा के सेल करें. द एक्टिविटीज ऑफ डिफेंडेंट 1 to 8 अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट. ये कहा कोर्ट ने कि इन्फ्रिंजमेंट है. ये पासिंग ऑफ भी है ऑफ देयर गुड्स. ये डाइल्यूशन ऑफ प्लेंटिव्स का ट्रेडमार्क भी है, क्योंकि जब आप वो पिज़्ज़ा खाएंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा. यू विल बी लाइक डोमिनोज का पिज़्ज़ा खराब हो गया है एंड यू विल नॉट ऑर्डर फ्रॉम इट अगेन. तो क्या हो रहा है, आप उस नाम को, उस ट्रेडमार्क को आप डाइल्यूट कर रहे हैं. And tarnishment of plaintiff's goodwill and reputation. So that is all for this month's current legal affairs, and I hope you have understood what has happened in the courts. You've also understood the IPR quest that has come for this Domino's Pizza. इस तरह के बहुत सारे आते हैं and mostly these cases come to Delhi High Court, and we have been seeing it over and over again. So anybody who's preparing for exams like CLAT, LLM specially, तो आप लोग के लिए ये सब important हो जाता है थोड़ा ज़्यादा. So that's all. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.